everyone. In this video, we'll learn about the historical background of the Indian Constitution or the Company Acts. Okay. So we divide the Company Acts into the Company Rule, that is the East India Company Rule from 1773 to 1858, and the Crown Rule, that is 1858 to 1947. Okay. So let's move ahead. So the first basically rule or the act is known as the Regulating Act of 1773. So what we need to do here is हम लोग को क्या करना है कि इसके जो मेन प्रोविजंस हैं इसमें से जो भी 12 चीजें याद होती हैं कि कौन बने, ठीक है, क्या स्पेशल चीज आई थी, कुछ स्पेशल कुछ नई प्रावधान या नए प्रोविजन तो नहीं आ गए थे। सो ये सारी चीजें याद रखनी है। सो मैं यहाँ पे आप लोग को बताते जाऊंगा कि कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और किसको ज्यादा कैसे आपको याद में रखना है। यूं तो सारे कुछ अच्छे से पढ़ना है तभी समझ में आएगी, ठीक है। ओके, सो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. So the first provision over here is important provisions are the Governor General of Bengal. So what the first points, the act designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and established an executive council of 4 members to assist him. The first Governor General of Bengal was Lord Warren Hastings. ओके, सो पे बोला गया है कि द गवर्नर ऑफ बंगाल, उससे पहले क्या बोला था? गवर्नर ऑफ बंगाल, ऑब्वियसली बंगाल वाज द नर्व पॉइंट ऑफ ब्रिटिश, यस, इट वाज द नर्व पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश। सो ब्रिटिश सारा इंडिया को कंट्रोल कहाँ से कर रहे थे? बंगाल से, ऑब्वियसली बंगाल वाज देयर नर्व सेंटर, नर्व। सो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज formed as the governor general of bengal. ओके, इट वाज, तो यहाँ पे क्या किया उन लोग ने, और सेंट्रलाइज करने की, सेंट्रलाइजेशन दिखाने की कोशिश की, बंगाल को कैपिटल जैसा बनाने की कोशिश की। ओके, एंड एस्टेब्लिश्ड एन executive council of 4 members to assume. As we know that legislature makes the laws, executive implements the laws, and judiciary adjudicates the laws in a in the as the branches of the of state. ओके, सो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक बनाई गई 4 मेंबर्स की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। सो on the Regulating Act 7 of 17 by the Regulating Act of 1773, Governor General of Bengal, Governor of Bengal was as the Governor General of Bengal. Okay, and the first one to be the Governor General of Bengal was Lord Warren Hastings. तो ये नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was Lord Warren Hastings. Okay, so who was the last governor of Bengal then? Obviously he was also Lord Warren Hastings, ठीक है, कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल was only the first governor general of Bengal. Okay, so the second point over here is subordination of presidencies. So ये मैं आप लोग को ये छोटे छोटे कीवर्ड्स जैसे बना के पहले ही लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रखने में आसानी हो। ओके, या समझने में आसानी हो कि यह देख के आप लोग को उसके अंदर क्या है, एक बार पढ़ने, 2 बार पढ़ने के बाद आप लोग को सिर्फ यही देख के याद आ जाए, रिवीजन में आप लोग को हेल्प हो। ओके, सो फॉर दैट पर्पज मैंने पहले ही एक शॉर्टकट लिख के रख दिया है, उसके बाद पॉइंट लिखे हो, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है ये क्यों दिया गया। The act governors of the Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal. So ऊपर में क्या है? ऊपर में होगी गवर्नर ऑफ, गवर्नर जनरल ऑफ GGB, बंगाल गवर्नर जनरल, उसके नीचे 2 होंगे मद्रास के और बॉम्बे के, ठीक है। तो ये यहाँ से कंट्रोल होंगे ये 2, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब वही है कि the act made the governors of the Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal. So previously the 3 presidencies Bengal, Bombay and Madras were independent to one another. So उससे पहले 3 presidencies were independent of one another, ठीक है। So third provision over here is establishment of the Supreme Court. Obviously this is not the same court, same Supreme Court जो अभी दिल्ली में है। ये सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द
establishment of a Supreme Court at Calcutta in 1774, comprising one Chief Justice and 3 other judges. So कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए मुझे, अभी की जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी दिल्ली में, उसमें कितने जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। ओके, ओके, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा चेक करके। तो दिस कुड बी आल्सो वन क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि पहले जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका नाम था एली। मैं माउस यूज कर रहा हूँ एक्चुअली, इसीलिए हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, माफ कीजिएगा। एलिजा इम्पे। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका जज था, उनका नाम था एलिजा इम्पे। ओके, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। जो चौथा प्रोविजन था इस एक्ट का, ओके, द फोर्थ प्रोविजन वाज द प्रोहिबिशन ऑन प्राइवेट ट्रेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन के मामले सामने आ रहे थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, ट्रेड पर्सन थे, वो लोग कंपनी को हेल्प कर ही रहे थे, मतलब कंपनी के थ्रू तो ट्रेड कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो अपना बिजनेस या अपने पर्सनल कैपेसिटी से भी ट्रेड कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, कंपनी को हो रहा था भारी नुकसान। So, this act prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. Okay, तो डायरेक्ट है, ये समझ में आया ही होगा। So fifth provision was the control by the British government. Obviously ब्रिटिश से तो कंट्रोल होना ही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटिश की कंपनी थी, है ना। तो ब्रिटिश की कंपनी थी, ऑब्वियसली वो कंपनी एक हाथ से ज्यादा कमाने लगे, तो ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट उसको टैक्सेशन करेगी ही ना, ऑब्वियसली। सो उसको कंट्रोल में तो लाएगी ना। So the act strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors. The court of directors थी, वो थी द गवर्निंग बॉडी ऑफ, ठीक है, जो कंपनी को गवर्न करती थी, उसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। सो देखिए, उन लोग को रिपोर्ट भी देने बोला गया। दिस इज नॉट ऑफ दैट इम्पोर्टेंट, बट द प्रीवियस वंस वर मोर इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। Now let's move on to the Pitt's India Act of 1784. So after the regulating act, ठीक है, 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, ठीक है, 1781 में क्या, 1781 में जो कंपनी अफेयर्स थे उन पे इन्वेस्टिगेशन कराई गई, कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे, ठीक है। एक सीक्रेट और एक सिलेक्ट कमिटी की मदद से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिलेशनशिप जो थी बंगाल काउंसिल के ऊपर साथ, उस पे भी इन्वेस्टिगेशन आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 1780, उसमें बाद में आते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर तो उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो 1781 की कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन लगाई थी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसने जो रिपोर्ट दिया, उसी उसी की वजह से आई पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये यहाँ पे क्या क्या है। For the first time, the company's territories in India were referred to as the British possessions in India. ओके, ये समझ में आया होगा कि कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया में, उनको फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला गया, ठीक है, कागज पे ही सही, ठीक है, बोला गया। तो देखिए धीरे धीरे कैसे, मतलब एक कंपनी आई थी, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड बिजनेस करने आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही, करती गई, टेरिटरीज ऑक्युपाई करती गई, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्निंग बॉडी बॉडी सा लेती गई, है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगी। तो ऑब्वियसली वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को दाखिल होना ही था, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर रिफर्ड टू एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ओके, ब्रिटिश टेरिटरीज और ब्रिटिश पोजेशंस इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, तो एक प्राइवेट कंपनी की चीजें कैसे गवर्नमेंट की चीजें हो रही हैं, देखिए धीरे धीरे। सो मेन प्रोविजंस क्या क्या हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शंस।
distinguished between the commercial and political functions of the company. So यहाँ पे कंपनी जो भी मतलब कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस थे दोनों को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट किया गया. Okay. So second point is court of directors and board of control. It allowed the court of directors to manage the commercial affairs. The court of directors थी जिसकी हम लोग प्रीवियस उसमें बात करते हैं. It allowed the court of directors, the governing body, to manage the commercial affairs, but created a new body called the board of control to manage the political affairs. This established a system of double government. ओके. सो कंपनी के अंदर ही क्या किया गया, दो बॉडीज बनाए गए, दो सेपरेट एंटिटीज बनाए गए. उन सेपरेट एंटिटीज को एक को मैनेज करने दिया गया कमर्शियल अफेयर्स. आप देख लो ये बिजनेस जो है ये बिजनेस पर्पज आप देख लो. और जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बाकी सब पॉलिटिकल अफेयर्स, रिलेशन विद द नेबरिंग किंगडम्स और स्टेट्स, ये सब पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया. तो दिस इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ, देख रहे हैं ना, डबल गवर्नमेंट हो गया ना. तो पैसा कोई और देख रहा है, पॉलिटिक्स कोई और देख रहा है ना. तो सुपरविजन एंड एक्शन. थर्ड पॉइंट, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एम्पावर्ड to supervise and direct all operations to the operations of the civil and military government or revenues of the British possessions in India. So ये जो board of control थी जो political affairs कर रही थी, उसको क्या क्या दायित्व दिया गया, सुपरविजन का डायरेक्ट दिया गया. ठीक है. क्या का सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स का और जो भी ब्रिटिश पोजीशंस हैं इंडिया में उन सब का. ठीक है. और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी गवर्नमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793. सो इस पे आने से पहले, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे आने से पहले मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. ही वाज, मतलब जो पहले थे वारेन हेस्टिंग्स, उनसे लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे. ठीक है. सो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के साथ साथ ही मतलब कुछ प्रोविजंस आए थे जो कि उनको एक्सटेंसिव राइट्स दे देते थे. ठीक है. तो उन सारे प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने के लिए ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाई गई थी. तो इसके प्रोविजंस देख लीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, एक दो. ओके. इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, इतना खास भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंशन ऑफ ओवरराइडिंग पावर. ये देखिए, द एक्ट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज. ओके. सो जो कि एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, वो सब पावर सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस तक नहीं, इन इन फ्यूचर जो भी गवर्नर जनरल्स होंगे, हाँ, अ, और की जो भी गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसीज के, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सो जितने भी गवर्नर जनरल या गवर्नर होंगे उन सबको भी दे दिया गया. अभी ये क्या क्या थे वो सब छोड़िए, अभी अभी आप लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना है. ठीक है. So second provision is the increased powers for Governor General. It gives the Governor General more powers and control over the governments of the subordinate presidencies of Bombay and Madras. अभी गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावर दिया गया कंट्रोल करने बॉम्बे एंड मद्रास. ओके. सो पहले ही मैंने बताया था, पहले ही पढ़े तो कि जो बंगाल गवर्नर थी उन्हीं के अंदर थे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे. सो मोर पावर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, बॉम्बे और मद्रास को. ओके. सो जो थर्ड पॉइंट है, the act extended the trade monopoly of the East India Company in India for another period of 20 years. अभी ये 20 years के बाद मतलब ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, मतलब ये चार्टर एक्ट जो है, ये चार्टर एक्ट मतलब, चार्टर मतलब क्या होता है, बेसिकली एग्रीमेंट टाइप होता है. तो चार्टर जो है 20 साल के लिए फिक्स्ड है. अभी 20 साल में उसको बदला जाएगा. 20 साल के बाद उसको सिर्फ रिन्यू किया जाएगा या उसको कुछ बदलाव लाने हैं तो लाए जाएंगे. तो अभी आप लोग की दिक्कत हो गई कि अभी नेक्स्ट एक्ट जो आएगी वो 20 साल बाद आएगी. ओके. सो लेट्स सी.
सो द कमांडर इन चीफ्स रोल है, कमांडर वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दो जो है, ठीक है, not that important, but at least you read it. So let's move forward to the next charter act. ओके, सो जैसे कि बोला गया था कि 20 साल बाद आएगा, तो वो 17 कितने थी, 93 अभी आ गई 1813 में, ऑब्वियसली 20 इयर्स के बाद रिन्यू हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोविजंस है वो डायरेक्टली इंडिया को इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है, टिल द प्रेजेंट डे। So the first provision is the act abolished the trade monopoly of the East India Company in India, opening Indian trade to all British merchants. However, the company retained its monopoly over trade in tea and trade in China. अभी इसका सरल सा मतलब यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मोनोपोली दी गई कि आप ही का है इंडिया, आप ही इंडिया में ट्रेड करो, बिजनेस करो, मर्चेंटाइल करो, कुछ भी करो, ठीक है, आप ही करो, किसी और ब्रिटिश कंपनी को ये नहीं दी गई थी, ठीक है, जी, मतलब परमिशन ही नहीं थी, ठीक है, ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द मोनोपोली। तो कोई और आ ही नहीं सकता था, ट्रेड ही नहीं कर सकता था, ये तो नाइंसाफी हो रही थी ना। तो वहां पे भी जो कैपिटलिस्ट लोग बैठे थे, वो लोग भी जब लेजिस्लेचर में घुसे, मतलब वो लोग भी जब पार्लियामेंट पे एमपीज हुए, हिस्सा हुए, तो वो लोग push करने लगे कि रिवोल्ट करने लगे कि हम लोग को भी, हम लोग के भी कंपनी को परमिशन दी जाए। तो ऑब्वियसली इसी की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ये बंद हुई। कब हुई? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद। ओके, सो एबोलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली। सो यहाँ पे सबके लिए ओपन हो गई ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। हाउएवर द कंपनी रिटेन्ड इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना एंड ओपियम। ओके, ओपियम भी होता है यहाँ पे, ऐड कर लीजिएगा। सो हाउएवर द कंपनी, लेकिन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये इन दोनों में क्या हुआ, मोनोपोली अभी भी बरकरार रही, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कब आई थी? 1813 में। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा जैसे भी हो सके। So sovereignty of the British Crown. Second point. It asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India. समझ में आया होगा, ब्रिटिश क्राउन इज द सोवरेन ऑनर ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, बस यही सरल सा मतलब, ठीक। So Christian missionaries, the act allowed Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. So Charter Act of 1813, it allowed the Christian missionaries also to come to India for the purpose of enlightening the people. So याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनते हैं इससे, पहले बने ही हुए हैं, ठीक है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। So the fourth point is it provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India. Okay, this is one of the most important provision of the Charter Act of 1813. It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India. तो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपागेट, प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए क्या किया गया था? एक 1 लाख रुपए का एक अमाउंट भी रखा गया था स्पेशली। ओके, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इज हियर द टैक्सेशन एंड पावर, टैक्सेशन पावर्स, एक्ट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्संस, ठीक है। इसके बाद रिवोल्ट भी होने लगे बहुत सारे जगह में, हम लोग के आसाम में भी बहुत सारे रिवोल्ट हो गए थे, है कि नहीं? ऑब्वियसली you can relate those things. Okay, the act authorized the local governments in India to impose taxes on persons and also to punish those who did not pay taxes. So it is becoming regressive. So उसके बाद आता है, 20-20 साल बाद आते हैं ना, तो 1813 में थी चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट 1833, obviously a charter act of 1833. What are the provisions? Let's move over here. So the first provision is the act made the Governor General of Bengal the Governor General of India, peak of centralization, ठीक है। एक नाम दिया, नाम था पहले गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल, then it became the Governor General of Bengal, and now
गवर्नर जनरल ऑफ सेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ही नाम चेंज होके क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये important, this is important. And who was the first Governor General of India? Lord William Bentinck was the first Governor General of India, and it is known as the peak of, also called, this act brings the peak of centralization. Obviously, Bengal से India हो गया था, so you can relate it. Okay, so second provision is legislative powers. It deprived the governors of Bombay and Madras of their legislative powers. मतलब वो कोई law नहीं बना सकते. Governors of Bombay and Madras, they cannot make the laws. Legislative powers उनके छीन लिए गए. ठीक है. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. So for entire British India, exclusively law-making power was given in the hands of Governor General of India. Okay, the laws made under the previous acts were called regulations, while laws made under this act were called acts. Okay, so this is the difference. The laws made under the previous acts were called as regulations, while laws made under this act were called as acts. So that's the difference. What are the other provisions? Let's see. वही same 1833 के. So it the act ended the East India Company's activities as a commercial body, transforming it into a purely administrative body. ठीक है. द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस एक्ट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी मतलब कमर्शियल बॉडी का एक सिंबल था, उसको भी खत्म करके इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया. Okay, and it was written that it was provided that the company's territories in India were held by it in the trust for His Majesty, his heirs and successors. Okay, so किसके ट्रस्ट पे, मेजेस्टी, द क्वीन, द किंग, और किंग के हेयर जो कि आने वाले पीढ़ी हैं, ओके, सक्सेसर हैं, उन सब के हाथ में डोर थमा दी कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया. ओके, सो देखिए कितने क्रूर थे ब्रिटिश. ठीक है, सारे एक एक करके ले रहे थे. पहले तो कंपनी ने ली थी सब हड़पे, फिर वही कंपनी से ब्रिटिश सरकार ले रही थी. Okay. So the fourth provision, the Charter Act of 1833, it attempted, ठीक है, just an attempt. तो अभी मत सोचिएगा कि अभी हो गई थी, 1833 में हो गई थी, ये अभी नहीं होती है, बाद में होती है. So it just attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants and stated that Indians should not be debarred from holding any place, ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी. सो ये प्रोविजन लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, नेगेट किया गया आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. हाँ, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, दे अपोज्ड इट, दे नेगेटेड इट, और फिर से इसको वापस लिया गया. तो ये क्या करना चाहती थी, सिविल सर्विस जो होती है, जैसे कि अभी भी आज भी यूपीएससी सिविल सर्विस, ओके, स्टेट लेवल स्टेट पीसीएस भी है. सो सिविल सर्विस बेसिकली यू मीन द आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ओके, सो उसमें क्या लाती थी ये एक्ट, 1833 की चार्टर एक्ट, ओपन कंपटीशन. ठीक है, एंड ऑल इंडियंस शुड बी आल्सो बी अलाउड. सो प्योरली मेरिट के बेसिस पे सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसे मतलब प्रावधान लेके आई थी, लेकिन इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से नेगेट किया गया, ऑपोज किया गया. क्यों? क्योंकि इसमें उन लोग का फायदा था, उन लोग के अपने आदमी सिविल सर्विस में घुसा रहे थे. सो ऑब्वियसली करप्शन तो ऑब्वियसली जहां भी होगी ना. So that's the thing. So let's move ahead. तो वो थी 1833 की. सो 20-20 साल बाद आने थे. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आई इसके बाद. सो लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट, इसके बाद जो आएंगे वहां पे चार्टर एक्ट नहीं होगी. ठीक है, सो ये है जो लास्ट वाली चार्टर एक्ट होगी. इसके बाद के वाले, इसके बाद जो भी एक्ट्स आएंगे उन लोग को चार्टर एक्ट नहीं बोला जाएगा. सो व्हाट आर द प्रोविजंस, लेट्स सी. First provision is the act separated for the first time the legislative and executive functions of the governor general. the governor general को ही पहले से मतलब उसके असिस्ट करने के लिए काउंसिलर बनाई दी गई थी, है कि नहीं. सो वही लॉ भी बनाती थी, वही एग्जीक्यूट भी करती थी. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 1853 में क्या हुआ कि
लॉज को बनाने का गवर्नर जनरल की काउंसिल में डिवीजन किया गया कि लॉज बनाने के लिए एक काउंसिल होगी और लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक काउंसिल होगी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग किए गए। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 new members called legislative councillors to the council. This established a separate governor general's legislative council known as the Indian Central Legislative Council. ठीक है, दिख रहा है ना? Which functioned as a mini parliament, adopting the same procedures as the British Parliament. Okay, so यहाँ पे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। so ये क्या हो गया, इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया है और वो फंक्शन भी एज ए मिनी पार्लियामेंट ही कर रही थी। ठीक है। सो दिस एक्ट फर्स्ट डिवाइडेड द गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये याद रखना है आप लोग को। ओके, क्या याद रखना है? दिस 1853 एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, एंड मिनी पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। किसको मिनी पार्लियामेंट? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी? 1853। तो ये फर्स्ट पॉइंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज इट इंट्रोड्यूस्ड, जो 1830 में नेगेट करके नहीं ला गई थी, नहीं ला गए थे, है ना, जो ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिविल सर्विसेज। ओके, इट इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे वो लाई गई जैसे 1853 में। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम for the selection and recruitment of civil servants. This was a significant move towards merit-based appointments in the civil services. Okay, very good. ठीक है, ये तो इजी है, समझ में आई होगी। So next provisions देखते हैं। So third provision is the act extended the East India Company's rule and allowed it to retain possession of Indian territories on trust for the British Crown. ठीक है, तो ये तो समझ में आया होगा, इजी लाइन है। See, act extended the Indian Company's rule and allowed it to retain possession of Indian territories on trust for the British Crown. Obviously, जो भी Indian territories occupy करेगा, obviously, it is for the trust of the in the trust of the British Crown only. ठीक है। So unlike previous charters, it did not specify any particular period for this extension, indicating that the company's rule could be terminated at any time by the British Parliament. So यहाँ पे मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी मतलब और ज्यादा चार्टर एक्ट्स नहीं लाने थे। ठीक है, उन लोग के फटाफट ये सिलसिला खत्म करके सारा इंडिया को अपने अंदर ला ही लेना था, ये कंपनी के थ्रू मतलब गवर्न नहीं करना था। मतलब क्या हो रहा था, वहां पे ब्रिटिश थी, फिर कंपनी थी, फिर यहाँ पे इंडिया में गवर्न कर रही थी कंपनी। मतलब डायरेक्टली मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बीच में कंपनी थी, तो शॉक एब्जॉर्बर का टाइप का हो रहा था। ठीक है ना। तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी मतलब सबर का बांध टूट रहा था कि हटाओ कंपनी को यहाँ से अभी हम लोग को डायरेक्ट रूल करना है। सो फॉर दैट प्रीवियस चार्टर्स में मतलब बोल दिया जाता था कि इतने पीरियड के लिए है ये, इतने पीरियड के लिए ये एक्ट है। इसमें कुछ वैसे मतलब 1853 में बोला नहीं गया। तो दैट इज व्हाई दिस इज द लास्ट चार्टर एक्ट। और इसके बाद कुछ होता है वो आप लोग को बताऊंगा मैं इन फ्यूचर, indicating that a company's rule could be terminated at any time by the British Parliament. Okay, so that's all. And the fourth point, first time the act introduced local representation in the Indian Central Legislative Council. Local representation दिया गया मतलब इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ऑफ द 6 new legislative members of the governor general's council, 4 were appointed by the local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal, and Agra. Still no Indians. Okay, but they were appointed by the local provincial governments of Madras, Bombay, and Bengal, and Agra. So these are all the important things of the 1853 Act. Now, uh, let's end the video over here. In the next video, we'll discuss all about the Government of India Act of 1858. Okay, from here, where the ground rule starts. Okay.